ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। तो खैर मैं चाहूंगी कि तुसी की मैसेज देना चाहोगे कि जेडी न्यू जनरेशन आ रही है तो पंजाबी मां बोली ते काम करना चाह रही है उन्हें की कहना चाहोगे? पहली गल तो ये कि नवी पीढ़ी साढ़े तो बहुत ज़्यादा समझदार है, जाणू है, ज्ञानी है। असी तो नहीं उन्होंने की समझाना है, वो पहले ही समझदार ने। हाँ, एक गल मैं ज़रूर करांगा कि इंसानी तारीख दे विच बहुत सारियां शैवां ने और बहुत सारी इजादात इहो जिहियां ने ਜਿਹੜੀ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ कि बच्चे अपनी ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੜਨ ਦਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋ, ਆਪਣੀ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋ, ਆਪਣੀ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਡਿਸਟਲ ਫੈਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਐਸਾ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि फलां एसी है और बेटी के जहेज का बेहतरीन साथ, फलां टीवी है बेटी के जहेज का बेहतरीन साथ। वो की होया उन्होंने लोगों को सुना के ना फिर एक गल तय कर दी थी कि हुन देना है। बिल्कुल सही कहा कि हुन देना है, बनता है। ए चीज़ां इस वास्ते यूज होंदियां पईयां ने। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कह रही है वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਸੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ AI ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਕੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਔਰ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਐਂ ਸਮੈਲ ਆ ਗਈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਅੰਬ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਧਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਧਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂਗੋ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 5-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਦਿਹਾਨ ਅਵਾਰਡ ਗੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਮੁਦੱਸਰ ਬਸ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ? ਡਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਹਾਨ ग्लोबल प्राइस हासिल में हो शहर के नाम हाँ, पे जीपी दिन टॉक के स्टूडियो दुए ते आज मेरे किस स्टूडियो में achievement बहुत तो ही बात खूबसूरत गेस्ट मौजूद है। गेस्ट का नाम बताते चलिए, आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर उस्मा शहबाज जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट है। आज इनसे हम बात क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप। तो आपने सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि रिलेशनशिप आजकल थोड़ा पुराना हो गया। आज हम सिचुएशनशिप का जमाना है। आज हम सिचुएशनशिप पे बात करेंगे और जानेंगे कि रिलेशनशिप को टोटल लोग सिचुएशनशिप में क्यों ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और सिचुएशनशिप में ही आना चाह रहे हैं। उसका कैसे है आप? अच्छा, उसका मुझे बताएं कि जीपी टॉक स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा? हर साल it's like a second home लिटरेचर and your family. ओके। ਉਹਦੇ बहुत ਵਿੱਚ अच्छा ਸ਼ਾਮ लगता है ਦੀ जब ਸਕ੍ਰਿਪਟ आप- ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ अच्छा, उसका मुझे यहाँ हाँ सवालों जी, की तरफ से ते जाऊंगी। ਉਹਦੇ पहले ਵਿੱਚ ये ਜਿਹੜੀ बताएं कि ਉਹਨਾਂ आप ਦੀ खुद भी जो इतनी भी juries खूबसूरत है, वगैरह, खूबसूरत आपके समझਦੀਆਂ बच्चे भी ਨੇ हैं selection कि कर और वो भी आज हाँ, हमारे कैसा स्टूडियो में आ तशरीफ गया लाए है हैं। ये कि खूबसूरती का क्या राज है? फाइनलिस्ट बुक्स ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ खूबसूरत मैं नहीं select मानती इस ਕਰਦੇ ਨੇ। चीज ਤੇ को, बड़ी मैं honor मतलब ਦੀ मैं ਗੱਲ सेल्फ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि प्रेजिंग में ਤੁਸੀਂ मेरा ਇਹ बिलीव ਜਾਣਦੇ नहीं है, हो लेकिन ये लोग कहते हैं और फिर वो आई ਤੁਹਾਡੇ नो ਕੰਮ मेरी own हाइट ਕਰਦੇ है, ਨੇ। ये सब चीज तो हो सकता है जेनेटिकली डिफरेंट न्यूज़ आ गई चैनल्स हो वगैरह इस ਤੁਹਾਨੂੰ तरह ਇੱਥੇ से। ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵਰ और ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ आई ਨੇ हैव अ वेरी जिस हैंडसम ਵੇਲੇ हस्बैंड ਤੁਹਾਨੂੰ आल्सो। ओके। तो बच्चे जो हैं ब्रिटिश उनकी कोलंबिया most of the time शक्ल उनपे हैं। अच्छा, ਜਿਹੜੀ तो ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ कोई ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ we ਲੈ make a ਜਾਂਦੇ good ਨੇ couple, so that's why ਤੁਹਾਨੂੰ हमारे ਸਪੀकर बच्चे ਦੇ भी ਨਾਲ प्यारे हैं। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ अच्छा, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ आप introduce समझते हैं कि करवाਉਂਦੇ आपने ਨੇ, अपनी ਤੁਹਾਨੂੰ लगਦਾ खूबसूरती कि का यार क्रेडिट जो है वो अपने हस्बैंड को दे नहीं, दिया। क्रेडिट जाहिर बात है मेरे पास भी है, लेकिन ये है कि आई ऑल्सो हैव अ वेरी हैंडसम हस्बैंड। Okay. तो कहते हैं दो कि जब तब लोग लिखना जो है चाहिए। उनका हाँ जी। कॉम्बिनेशन अच्छा, जो तुसी ए achievement लेके पाकिस्तान आए। ब्यूटीफुल किड्स ਤੇ आल्सो। हाँ। So that is it. व्यूअर्स इस बात की तो गवाही मैं लाजमी दूंगी कि भाई हमारे ज्यादा वाकई पार बहुत आगे कर दिया होता है। अच्छा, उसका मुझे बताएं कि नहीं, रिलेशनशिप को लोगों ने वो पीछे नहीं छोड़ है, दिया। मैं तो दसा कोई सिचुएशनशिप का आजकल बादशाह जमाना नहीं है। वैसे सिचुएशनशिप है क्या? सिचुएशनशिप जिस आई तरह थिंक मैं बहुत पहले कहा क्रेडिट कि का मैं ਹੁਣ ਵੀ रिलेशनशिप ਜਿਸ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ टाइप ਉੱਤੇ है एक ਉਹ ही ध्यान रिलेशनशिप ज्ञान होता है जिसमें आप कि और जिਵੇਂ मैं अगर ਅਸੀਂ किसी रिलेशनशिप के अंदर 10वीं किसी ਦਾ फर्स्ट ईयर एक जगह पे रह रहे हैं या ਤੇ emotionally ਜਿਹੜਾ connected हैं, ਵੀ लेकिन ਬੰਦਾ हम एक दूसरे के काम लिए कोई अपना कमिटमेंट कर नहीं रहा है करते, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, प्लेजरिज्म चलਦਾ ना ਪਿਆ मेंटली ना ਜਾਂ फाइनेंशियली ना ਹੋਰ और ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ और ਨਾਲ ਲੋਕੀ सिचुएशनशिप में लोग ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਵਾ भी ਰਹੇ होते ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ हैं, ਸਾਰਾ ਕੁਝ उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप ਬਾਹਰ भी ਆ होते ਰਿਹਾ हैं, ਹੈ लेकिन वो कमिटमेंट ਉਹ ਜਿਸ नहीं ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मतलब ये कि उनको ये आर्टिफिशियल विदाउट जो भी वास्ते तो मेरे ख्याल ओपन से एंड असाइनमेंट चेक करवा से करेक्ट प्लेजरिज्म होना चाहिए, उनकी शादी राइटिंग चेक करवा से सारा प्लेजरिज्म होना नहीं, चाहिए। या कोई पर्सन दो लोग एक कपल ਬਹੁਤ एक ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ रिलेशनशिप के ਲੋਕ ਨੇ अंदर ਉਹ लड़की को भी मुशायरे पता से होता है, पहले भी लड़की को ਉਹਨੂੰ भी ਕਹਿੰਦੇ पता ਨੇ होता है चैट कि अब जीपीटी हमने में शादी जल्दी करनी ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ तो ਬਣਾ ਲਈ हमारा आगे बढ़ ये के एंड जाते है। हैं। ਤੇ सिचुएशनशिप में ਉਹ शादी एंड नहीं ਚੀਜ਼ होता ਤੁਹਾਨੂੰ या कोई लॉन्ग टर्म आके कमिटमेंट लोग नहीं लगता है कि भी मैं This तो is अपना called काम the करना है situation. अपने अच्छा, मुझे ये मन की बताएं कि क्या satisfaction वास्ते करना है रिलेशनशिप फोबिया है बार लोगों वगैरह को कोई या नहीं फिर होता हाँ इसलिए एक चाहते हैं रिस्पेक्ट कि का एक आसानी रहे कि ऑनर रिलेशनशिप में का आपको पता जरूर है एहसास कि होता है ज्यादा कि हाँ उठानी यार पड़ेगी रब ने सिचुएशनशिप पे करम जब मर्जी किया है ड्रॉप और करके माँ बोली रिलेशन का खत्म किया, नेक्स्ट पे चले जाओ। अच्छा, ये गल्फ बेस्ट का पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट व्यूअर्स है। ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇज देना चाहोगे गर्लफ्रेंड सारे रखना, स्टूडियो बॉयफ्रेंड रखना, रिलेशनशिप ਜਿਹੜੇ रखना, ਲੋਕੀ लिव बात इन में रहना, हम्म। ये सारे नहीं बेस्ट की कॉन्सेप्ट मैं वैसे तो कोई अपने आप हम को जो इंदा है बंदा वो समझदा लेकिन नहीं उस बात हैगा सर्वाइव सर को जी यहाँ अब पे ਤੁਸੀਂ हाँ, मैसेज लेकिन देके ताकि relationship ਲੋਕੀ को लेके ਸਮਝਦੇ आगे ਨੇ चले। ਅਸੀਂ ਤੇ लेकिन ਸਮਝਦੇ लेकिन ਤੁਸੀਂ हमें ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ बताना ਉਸਤਾਦ ਹੋ चाहिए ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਸੇਜ हाँ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ कि ਕਿ ਤੁਸੀਂ अंग्रेजी ਲੋਕਾਂ बोलनी ਨੂੰ नहीं ਕਿ आती, ਪਾਕਿस्ताਨ लेकिन ਤੁਸੀਂ एक्सेंट ਆਏ देख ਤੇ के ਤੁਹਾਨੂੰ Yes, ਕਿੰਜ ਲੱਗਾ agree ਕਿ with ਕਹਿ you. ਤੇ ਇੱਕ और ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ अपनी ਜਨਰੇਸ਼ਨ घर में जो है वो अपनी माँ बाप के साथ खास तौर पे शादी राइटिंग की हवाले हाँ। राइटिंग की ते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कि वो जी क्यों? वो इसलिए क्योंकि अ, वहाँ पे कमिटमेंट नहीं है। जो लिखन अच्छा, माँ अपना बाप तो लिखन कमिटमेंट मांगते हैं, बहन भाई खालिस कमिटमेंट लिखन। मांगते हैं, बीवी बिल्कुल कमिटमेंट हाँ, मांगती है, हाँ। अपना हस्बैंड लिखन कमिटमेंट किसी मांगते भी हैं। ये रिश्ते वो हैं दुनिया जिनमें जी, हमें कॉम्प्रोमाइजेस सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। मैं अपनी ऐप वाइफ ही बहुत सारे बना लें कॉम्प्रोमाइजेस हाँ, सेक्रीफाइसेस बाकी देती जरा हूँ। इट्स नॉट इन मैसेज दैट है सेंस ते कि मैं मेरे ऊपर कोई जुल्म होता है बाबा फरीद एक बट दौड़ा मुझे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ख्याल शेयर रखना कर पड़ता देना है वा व्हाट माय हस्बैंड लाइक कि एंड व्हाट ਜਿਹੜਾ 1000 साल पहले हो क्या गया सन तो ये तो हर कि बीवी को जिन करना लोग है। एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है ना, जग सेम वो मोहे भी आ, मेरे लिए करता होगा। सै बहुत सारी लोयन चीजें मैं डिट उनको भी पता है कि ये इस टाइप की कज्जल रेख न है, इसको ऐसे सैंदियां ऐसे ऐसे नहीं सै करना। मैं इस पंखी वक्त सूहे शाम भेड़ का मगरिब के बाद के टाइम शायरी ਦੇ ये ਵੈਸੇ doing ਆਪਣੇ ਮਾਣੇ ਹਰ मैं ਬੰਦਾ सिर्फ ਕੱਢੇਗਾ एक दफा लेकिन मैं इन्फॉर्म ਇਹਦੇ करती हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਣੇ ਦੱਸ कि मैं ਦੇਣਾ जा रही हूँ। कि This is- जिन ये लोग उसने उसका कंप्रोमाइज किया है कि ਜਿਹੜੀਆਂ हाँ ठीक है। वो स्लीपिंग जिन एट लोग होम जग मोहिया उन्होंने कहा आप ਉਹ जाएं। ਅਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ये ਦੇ ਕੋਲ कॉम्प्रोमाइज है, ਸਾਰਾ वो हो ਜਗ सकता है वो दीवाना मुझे ਸੀ कहता नहीं जाओ, ਉਹ तो ਕਿਸੇ अगर वो ਰਾਜੇ मुझे कह देता ਮਹਾਰਾਜੇ कि ਬਾਦਸ਼ਾਹ नहीं ਦੀ ਵੀ जाओ ਹੋ तो मैं ਸਕਦੀ नहीं ਹੈ जाती, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਦੀ हाँ, चाहे जिंदगी मुझे कहनी आपसे होगी ठीक है। सॉरी करना जिन पड़ता कोई लोयन भी जग चीज़ मोहे नहीं। लेकिन आप अपने
अपने रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं कि मेरी रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि मैं यहाँ पे जीपी पॉडकास्ट तो ये गज्जल रेख ना सहंदियां
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ Situationship में ये ਡੈਲੀਕੇਸੀ ਇੰਨੀ commitment ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ और जहाँ ਸੁਣਨੇ पे ਦੀ कमिटमेंट ਗੱਜਲ ਦੀ नहीं ਲਾਈਨ होती ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ हम ਰੇਖ, वहाँ पे ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ नहीं ਵਾਸਤੇ है। ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ मैं आज एक लड़के के साथ घूम रही ਗੱਜਲ हूँ, कल ਰੇਖ किसी ਨਾ और के साथ ਸਹਿੰਦੀਆਂ घूम रही हूँ। ਸ- भाई पहले ਪੰਖੀ वाला ਸੋਹੇ मुझसे ਬਹਿਟ, पूछ नहीं सकता कि मैं पंखी दूसरे वाले के साथ क्यों घूम रही हूँ। परिंदे बहेट अंडे जबकि देने, मैं ਤੇ अगर किसी ਮੈਂ और ਫਿਰ के ਉਹਨਾਂ साथ ਦੀ बैठी हूँ तो ਕੋਪੀਆਂ मेरा ਦੇ ਵਿੱਚ हस्बैंड अंडे मुझसे पूछ ਪਏ सकता है कि मैं इसके साथ क्यों बैठी हूँ। ਕਿ ਐਂਡ ਬੰਦੇ ਦਾ This is the difference ਕਿ between ਜੋ ਵੀ relationship ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ and ਲੈਵਲ ਦੇ situationship। ਦੱਸੋ अच्छा, रिलेशनशिप है, में तो every है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कोई आयो, ऑफिशियली हो या अगर गर्लफ्रेंड है 4 दिन बॉयफ्रेंड खुशी है, ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, उसमें भी ये ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ कमिटमेंट का ਜੀਣ ਦਿਓ, जो है चक्कर है। ਕਿਸੇ बिल्कुल है। ਦੀ लेकिन सिचुएशनशिप में आप तो रिस्पॉन्सिबल ਜਿਹੜੀ नहीं है कि personal अगर life आप किसी है, के दूसरे के साथ ਉਹਦੇ चले गए ਵਿੱਚ तो ਨਾ दूसरा आपसे ਜਾਓ। क्वेश्चन नहीं कर सकता। नहीं कर और वो बड़ी कैसे करेगा ना बदकिस्मती उसने आप है वो, ये क्योंकि कि अब वो खुद भी तो आंसरेबल नहीं है ना। ਅਸੀਂ अगर वो लोग कहीं बैठा हुआ है तो मैं ਪਹਿਲੇ उससे ਤਾਂ नहीं ਸਿਰਫ पूछ सकती कि आप ਖਾਨਦਾਨੀ कहाँ ਤੌਰ से ਤੇ ਜਾਂ तो उस वक्त यहाँ ਸਕੂਲ पे पूछना ਕਾਲजेस चाहूंगी कि ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ मास्टर ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ क्योंकि मुझे लगता है करते रिलेशनशिप सां। तो बिल्कुल ही पीछे चला गया, अब मैं, सिचुएशनशिप का जमाना है और एक सिचुएशनशिप ही बहुत चल रहा है। ਵੱਡਾ वो ਨਾਮ ऑफिसेज ਹੈਗਾ हैं या फिर ਸਹਾਬਤ ਦੇ कजिन्स ਵਿੱਚ भी ਤੇ है ਉਹਨਾਂ या ਨੇ ਬੜਾ फ्रेंड्स ਕਿਹਾ भी ਕਿ है, ਉਹ आ सब ਕੇ ਨਾ चीजों में ਬੁਲਾਇਆ सिचुएशनशिप। पॉडकास्ट अच्छा, करने इसके वास्ते, सबसे बहुत लेकिन मेजर उन्होंने रीजन चलाया बीइंग नहीं। मुस्लिम ये भी है या क्यों? बीइंग ऐसे ही है। एशियन भी तो उन्होंने- क्योंकि हम अपने मदद से बहुत दूर हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ हम ਉਹਨਾਂ नमाज ਨਾਲ नहीं ਗੱਲ ਕੀਤੀ पढ़ते, ਸੀ कि रोजा मैं नहीं किसी रखते, ਦੀ भी हम पर्सनल कुरान लाइफ नहीं ਵਿੱਚ नहीं पढ़ते, जाऊंगा। लोगों उन्होंने के मेरे सालों लिए हो सवाल जाते ਕੀਤਾ हैं कि जी कुरान फलां पढ़ते फलां हुए। है जी ਉਹਦਾ ਤੇ गुलाब तो में मैं लपेटे उन्होंने हिमालयों मैं में कहा पड़े जनाब कुरान ਤੁਸੀਂ पाक, ਲੋਕਾਂ ਦੀ और पर्सनल वो लाइफ जो ਵਿੱਚ है ना क्यों उनको हम ਜਾਂਦੇ नहीं, हो? ਇਹ ਬੰਦਾ नहीं, मुझे मुझे लगता बड़ी है कि इस सारे बात में जो है ना वो तहजीबी तकलीफ वाले होती जा है। रहे से तहजीब के हवाले नहीं, में बच्चों से मैं नहीं, कहूँगी पॉडकास्ट कुरान या पाक आप खोलें इंटरव्यू का या किसी भी अपनी किसी पर्सनालिटी का पेशेंट हिस्सा से वो बना। कहते हैं कि आज ਤੁਸੀਂ मैंने ये ऐसी देखो बात पढ़ा नहीं चल है की उखाड़ा रहा है उस पर 10 आयशा ਤੁਸੀਂ देखो चल की रहा चलते बहुत ये कुछ भी इतनी दूरी है तुसी हमारी मदद से तो कोई हमने फिर भी शय रिलेशनशिप और जेह्ड़ी किरदार सिचुएशनशिप नहीं चल रही है, दूसरे हाँ, की कोई पैसा है, politics दूसरे की गल्ला शुरू कर देते हैं। नमाज Even आपको कि सब्र यार, देती है, आपको बिल्कुल। कमिटमेंट वो, सिखाती है। आप अल्लाह से ही ਜਿਹੜੀਆਂ कमिटेड नहीं है तो आप ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ बंदों से मर्डर क्या ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ कमिटमेंट करें। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ डिस्कस तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आपने ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ अपने ਦੇ आप ਕਿਰਦਾਰ को ਖੁਸ਼ੀ जो ਕਰ है ਰਹੇ ਹੋ वो ਤੁਸੀਂ पैदा ਬਜਾਏ ਕਿ होने ਵੀ से अब तक जो ਕਿ है ਉਹ वो ਬਈ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਈ सिचुएशनशिप में ਹੈ डाला हुआ है। ਇੱਕ अल्लाह ਬੰਦੇ ने ਦੀ आपको फ्री ਤੁਸੀਂ पैदा ਹੱਥੀ कर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਲਈ उसके बाद आपने ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ डिसाइड ਹੋਰ करना ਕੀ है ਸਜ਼ਾ ਦੇ आपके ਸਕਦੇ रिश्ते कौन ਬਈ से ਉਹਦੇ हैं, ਬਾਅਦ ਤੇ उनका ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ relations ਮਾਫ ਕਰ क्या ਦਿਓ है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ये ਵੀ तो ਤੁਸੀਂ जानवरों वाला वो ਬਹੁਤ Discuss ਜ਼ਿਆਦਾ करना है। डिसाइसिव जानवरों हो वाला रहे हो कि कॉन्सेप्ट नहीं है जी ना। ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ एक ठीक जो होया डॉग है वो एक के कि साथ ਅਸੀਂ मीटिंग ਤੇ कर रहा है, इस दूसरे लेवल के साथ ते मीटिंग बिल्कुल, कर मैं रहा ये है। बात करने वाली थी, बिल्कुल सही मामले एग्जांपल ने या ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਾਈवलरीज ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ रही ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आप ਵੀ एक जो है पर्सनल वो लाइफ से जानवर भी को एंटर नहीं होना वो चाहिए डिफरेंशिएट नहीं कर बिल्कुल सकता सही कि कह ये तो वाला मेहरबानी इसके है साथ ये मैंने कि जी मीटिंग पर्सनल की, लाइफ उसके ਵਿੱਚ साथ एंटर नहीं। ਨਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ Totally क्वेश्चन agree ਅਸੀਂ with you. अपनी This is all जिंदगी लगाओ about the खुश रहो sexual demand। 4 दिन की आप जिंदगी देखें हैगी जितने भी है वैसे ही रिलेशनशिप भी महंगाई आजकल चल रहे हैं और दूसरे या बहुत सारे मसाइल सिचुएशनशिप ਸਾਡੇ भी ਨਾਲ चल ਚੱਲ रहे ਰਹੇ हैं, ਨੇ they are all based on ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ sexual ਸੁੱਖ needs, ਦੇ sexual ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖ demand। ਦਈਏ ਜੇ वो ਦੁੱਖ शुरू ਅਸੀਂ ही ਕਿਸੇ ਦਾ वहां से घटा होता नहीं है कि सकते भाई या बातचीत ਅਸੀਂ या ਕਿਸੇ ਨੂੰ आपका सुख नहीं दे सकते इंटरेक्शन तो जो है कम आप से कम बिल्कुल दुख इमोशनली ना या दें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साइकोलॉजिकली बहुत शुक्रिया हो मुदस्सिर रहे हैं बशीर तो साहब, आपका तकलीफी वक्त सामने दैट्स दिता अ पार्ट ऑफ मेरी फिर दैट थिंग। उर्दू आ लेकिन रही थी, मैं बहुत बेसिकली मुश्किल आपको ना क्या पंजाबी चाहिए, याद करके फिर आई दोबारा वांट वापस आए। टू उम्मीद होल्ड करनी दैट है आज लेडी तानू या आई मेरी वांट टू पंजाबी होल्ड विच दैट पहला मैन। मेरा ये मुदस्सिर बशीर दा बेसिक चल इंटरव्यू रहा है हमारे बहुत पास चंगा इतने लगा और बेसिकली कमेंट बॉक्स सेक्सुअल ते नीड्स राय को दा पूरा इजहार करने के लाजमी लिए करियो रिलेशनशिप को आगे ते बढ़ाया इस जा नाल सकता है। मेनू दो इजाजत, बेसिकली अल्लाह हाफिज।